خداوند کے پاک قادر اور جلالی نام میں میرے تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح آپ کو اپنے کلام میں دن بدن بڑھتے اور ترقی کرنے کی قدرت اور توفیق بخشتا رہے۔ آج ہم 7ویں کلمے کے تعلق سے جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، اور جس کلمے کو آخری کلمہ کہا جاتا ہے اس کے لیے ایک جو ہے وہ ٹائٹل جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے دوبارہ ملاپ کا کلمہ، کہ یہ دوبارہ جو ہے باپ اور بیٹے کے ملاپ کا کلمہ ہے۔ اچھا، اب یہ تو ظاہر ہے اب کلمہ سنیں گے تو پھر ہی جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا اس کے لیے یہ ٹائٹل جو ہے وہ موضوع ہے یا نہیں۔ سو اس سے پیشتر میں اس کلمے کو پڑھوں، میں اس کا جو ورد ہے وہ یسایہ آئزیا چیپٹر 53 اور اس کی 10 سے 12 آیت جو ہے وہ پڑھوں گا، جو کہ ایک پچھلے کلموں میں بھی ہم نے ان آیات کو پڑھا ہے، لیکن پچھلے کلموں میں ہم نے جو ہے وہ سپورٹیو ورسز کے طور پر پڑھا ہے، لیکن یہاں پر یہ جو ہے یہ ورد کے طور پر ہم اس کو پڑھیں گے۔ یسایہ 53 باب اس کی 10 سے 12 آیت لکھا ہے کہ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بختوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکاری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بختوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ آمین۔ سو یہ اس کا جو ہے وہ ورد ہے، اور ہمیں یہاں سے کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ ملتی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ کی پیشن گوئیوں میں سے یہ پیشن گوئی بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ خدا کی مرضی کو جو ہے وہ پورا کریں گے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے کہ اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی 10ویں آیت میں، یعنی خداوند کی جو مرضی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ سے جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے۔ اس صلیب تک جو سارا جو کچھ بھی ہوا وہ خدا کی مرضی جو ہے وہ پوری وہاں پر ہم دیکھتے ہیں وقوع پذیر ہوتی۔ سو اب یہ کہ اس ورد کی جو کچھ ڈیٹیلز ہیں ان میں ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے اپنی جان جو ہے وہ موت کے لیے انڈیلی، وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار بھی کیے گئے، انہوں نے بہتوں کے گناہ بھی اٹھا لی اور خطا کاروں کی شفاعت بھی وہاں پر جو ہے وہ کی صلیب پر۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے کلمے میں پڑھا تھا۔ ہم آخری میں بھی اس کو ریویو کر رہے ہیں کہ خطا کاروں کی شفاعت تک کی بھی جو ہے پیشن گوئی جو یسایہ نبی نے کی ہوئی تھی۔ پھر اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا، یعنی یہ عام حالات میں کوئی انسان جو ہے وہ اپنی جان کا دکھ اٹھانے کے بعد اسے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو مر جاتا ہے، لیکن اس سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ دکھ اٹھانے کے بعد زندہ ہو کر اس ساری سچویشن کو جو ہے جو اس کے اوپر گزری ہوگی وہ اس کو ریکال ریویو کرے گا۔ پھر اس کے بعد لکھا کہ اور سیر ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ سیر ہوئے ہیں۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بختوں کو راست باز ٹھہرائے گا، یعنی اس کے پاس اس چیز کا عرفان، علم، حکمت جو ہے وہ خدا کی طرف سے اس لیول پر ہے کہ وہ بختوں کو راست باز ٹھہرائے گا اپنی حکمت اور اپنے عرفان سے۔ کیسے؟ کیونکہ وہ ان کی بدکاری خود اٹھا لے گا۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی بدکاریوں کو ہی وہ خود اٹھا لے گا تو وہ لوگ جن کی بدکاریاں اٹھائی گئیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ بات خدا کے کلام میں لکھی ہے، زبور میں جو مبارک ہے وہ جن کی خطائیں بخشی گئیں اور جن کے گناہ خدا محسوب نہیں کرتا، ان کے ساتھ حساب میں نہیں لاتا۔ سو وہ تو پھر کلیئر ہو گئے نا۔
हर लिहाज से, क्योंकि उनकी बदकारियां जो है वो माफ हो गई, तो वो तो रास्तबाज ठहरे। आगे कि इसलिए उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा, बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा, और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा। लूट का माल, कौन सा लूट का माल जो है वो जोरावरों के साथ बांटेगा? ये वो माल है जो जब जंग होती है तो बेशकीमत वो चीजें जो कोई भी हुकूमत या कोई भी फौज, चाहे वो असलहे की सूरत में है, चाहे वो सोने चांदी की सूरत में है, जो कि उनकी मलकियत होती है। यहां पर जिस चीज का जिक्र हम कर रहे हैं ये सोने चांदी की सूरत में नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिनको बांधा हुआ था कई सालों से गुनाह ने, और गुनाह के साथ जो खुदावंद की जंग हुई, मौत के साथ जो खुदावंद की जंग हुई, उनके कब्जे से जब जो है वो खुदावंद ने इनको छुड़ाया, तो अब खुदावंद के लिए ये सारा लूट का माल है। और ये लूट का माल जो था ये जोरावरों के साथ लिखा है कि वो बांट लेगा, यानी उसके साथ जितने भी जोरावर हैं, खुदा की बादशाही में काम करने वाले, उनके साथ ये लूट का माल जो है ये बांटा जाएगा। ये सारी उनकी प्रॉपर्टी होगी, उनका मालो दौलत गिना जाएगा ये, क्योंकि ये जानें बहुत कीमती थी, लेकिन इन जानों को जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी समझ के रखा हुआ था, जिसको कि हमने यसाया में एक बार ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी, अगर हम इसको जो है वो यसाया 14 बाब में देखे जाके, उसमें ये बात जो है लूसीफर के ताल्लुक से हमने पढ़ी थी। अगर हम थोड़ा सा इसको रिकॉल करें, और यही चीज़ जो थी ये उस बादशाह के अंदर भी थी जिसके बारे में ये बात जो है वो यहाँ पर की गई। और हम क्या जानते हैं कि ये शाह बाबुल और लूसीफर, क्योंकि उसी की स्पिरिट को ये बादशाह फॉलो करता था, लिहाजा इसके अंदर वही क्वालिटीज और वही सारी चीज़ें जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसीलिए जब खुदा ने इसके साथ बात की तो फिर खुदा ने इसको बात इसके साथ करते हुए इसके अंदर की जो पावर है, जो इसके अंदर जिस स्पिरिट को ये फॉलो करता था, उसको भी एड्रेस किया। और हम इस चीज़ को जो है वो यसाया 14 बाब आइज़िया चैप्टर 14 और उसकी 17 आयत जो है और 17 पढ़ते हैं कि जिसने जहान को वीरान किया और उसकी बस्तियां उजाड़ दी, जिसने अपने असीरों को आज़ाद ना किया कि घर की तरफ जाएं। ये असीरों को आज़ाद नहीं करते, जो इस स्पिरिट को फॉलो करते हैं, लूसीफर की स्पिरिट को जो लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो, वो असीरों को आज़ाद नहीं करते। अब इन असीरों को किसने आज़ाद करवाया है? इन असीरों को खुदावंद यीशु मसीह ने आज़ाद करवाया है। और अगर हम इस चीज़ को जो है वो इब्रानियों में से जाके पढ़ें तो लिखा है कि उसके दूसरे बाब हिब्रूज चैप्टर 2 वर्स 13 से ऑनवर्ड अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि और फिर ये कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा, और फिर ये कि देख मैं उन लड़कों समेत जिन्हें खुदा ने मुझे दिया मिरास के तौर पर, बस जिस सूरत में कि लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीला से उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी इब्लीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। ठीक है जी, यानी ये जो छुड़ाया है, ये जो आज़ादी दिलवाई है, ये जो असीरों को असीरी से बाहर लेके आया है, ये कौन है? ये खुदा यीशु मसीह है। इसलिए इनको जो है लिखा है कि मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा, और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी, और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफात की। अब जब इस चीज़ को हम यहाँ तक हमारे पास थोड़ी बेस इस चीज़ की बन जाती है, तो अब हम जब आखिरी कलमे को पढ़ते हैं तो लूका रसूल की, लूका तबीब की जो अंजील है, लूका को हम कभी कभी जल्दी में रसूल कह देते हैं। लूका जो है दरअसल वो रसूल नहीं थे,
ٹھیک ہے, رسول جو ہے ہمارے پاس جن اناجیل کو ہم رسولوں سے منسوب کرتے ہیں وہ صرف متی کی اور یوحنا کی ہے. مرکز بھی رسول نہیں ہے اور نہ ہی لوکا جو ہے وہ رسول ہے. تو لوکا کی انجیل جو ہے اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت یعنی کہ چیپٹر 23 ورس 46 میں یہ بات لکھی ہے کہ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور یہ کہہ کر دم دے دیا. اب مزیداری کی بات اگر ہم یہ دیکھیں یہاں پر تو وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو جا کر زبور میں پڑھتے ہیں تو زبور 31 جو ہے اگر ہم اس کو پڑھیں تو زبور 31 کی 5ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں یعنی سام چیپٹر 31 ورس 5 تو وہاں پر ایگزیکٹلی یہی ورڈ لکھے ہوئے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں, اے خداوند سچائی کے خدا, تو نے میرا فدیہ دیا ہے. تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ جیسے خداوند نے جو ہے وہ اس نبوت کی بھی تکمیل جو ہے وہ اپنے آخری لمحات جو تھے دنیا میں, جو جسم میں موت سے پہلے, اس میں وہ اس بات کی بھی تکمیل کر کے گئے کہ یہ چیز بھی جو تھی یہ پہلے سے ہی زبور کے اندر جو ہے وہ درج تھی. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے, جب ہم ریکال کرتے ہیں اس واقعے کو جو لازر اور امیر آدمی کا واقعہ ہے, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لازر اور امیر آدمی جب دونوں مرتے اور دفن ہوتے ہیں تو لکھا کہ ان کی جو روحیں ہیں ان کو فرشتے جو ہیں وہ لے جا کر عالم ارواح میں جو ہے, ایک کو جو ہے وہ عالم ارواح میں جو بہشت ہے یعنی پیراڈائز ہے جس کو پیراڈیسو بولتے ہیں گریک میں, وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں باپ ابراہیم کے پاس, باپ ابراہیم کی گود میں. دوسرے لفظوں میں کہا گیا ہے کہ اس کو پہنچا دیا جاتا ہے, اور جو امیر آدمی ہے اس کو روحوں کی قید میں یا عذاب کی جگہ پر جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اب وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام سارا جو ہے یہ فرشتے کرتے ہیں. لہذا کوئی بھی انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے, جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, تو اس کی جو روح ہے اس کو عالم ارواح میں لے کے جانے کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ اینجلز کی ہے. لیکن ان حالات میں ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کہ جو شہید ہوتا ہے وہ اس کی جو اسپرٹ ہے وہ عالم ارواح میں نہیں جاتی. ہم جانتے ہیں, آلریڈی ہم اس چیز کو پڑھ چکے ہیں, پہلے بھی خدا کے کلام میں سے سیکھ چکے ہیں. خدا یسوع مسیح نے اس لیے جو ہے وہ یہ بات اسی سینس میں جس طریقے سے کہ یہ بات جو ہے وہ سفنس شہید نے بھی کہی 7واں باب جو ہے اعمال اور اس کی 59 ورس میں کہ اے خداوند یسوع میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بھی جو اپنی روح ہے وہ باپ کے ہاتھوں میں سونپی ہے. اب آگے یہ کیوں کیا اس طریقے سے یہ تو میں ظاہر ہے اس چیز کو نہیں بیان کر سکتا, لیکن جو میرا خیال ہے ذاتی طور پر وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جب باپ کی مرضی کو پورا کر دیا صلیب پر تو نیکسٹ پلان بھی انہوں نے خدا کے ہی حوالے رکھا کہ آگے اب جو بھی پلان ہے باپ کا وہ میری روح کو جس جگہ چاہتا ہے بھیجنا وہاں پر اسے بھیج دے. اس لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور ہم جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی جو روح ہے وہ عالم ارواح میں ہی گئی اسی وقت, وہ ادھر قربان گاہ پر نہیں گئی جہاں پر جو ہے وہ خدا کے حضور خدا کے تخت کے سامنے جو سنہری قربان گاہ ہے جس کے نیچے ان لوگوں کی روحیں ہیں جن کے جو ہے وہ سر جو ہے وہ خدا کے کلام اور اس کی گواہی کے سبب سے کاٹے گئے ہیں یا جن کو قتل کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے. تو خداوند کیونکہ خود خداوند ہیں, باقی شہداء کی روحیں تو ڈائریکٹ جو ہے وہ آسمان پر ہی جاتی ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اگر جا رہے ہیں تو وہ سیدھا عالم ارواح میں جا رہے ہیں. سو یہ ایک یہاں پر جو ہے وہ چیز ہمیں جو ہے وہ مختلف نظر آتی ہے. اب یہ کہ اگر ہم پہلا پطرس کا پہلا خط جو ہے اس میں سے اگر ہم ایک آیت پڑھیں, پہلا پطرس اس کا 4واں باب اور اس کی 19ویں آیت, چیپٹر 4 ورس 19
1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 19 लिखा है, बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। यानी कि जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं, यानी अपनी मर्जी के मुआफिक नहीं, खुद ही शरारतें करके नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक जो है दुख पाते हैं, वो नेकी करके, मतलब दुख पाया अगर उन्होंने, तो नेकी डिसकंटिन्यू नहीं करनी, नेकी करनी है, नेकी वैसे ही कंटिन्यू करनी, और अपनी जानों को जो है वो लोग जो है वो वफादार खालिक के सुपुर्द करें। जाहिर है कि जो दुख पाकर खुदा की खातिर इस दुनिया से जाता है, जाहिर है कि उसको अगर दुख मिला है उस चीज़ का, एक तो ये है कि अपनी ज़िंदगी में उसने दुख पाया, उसको लोगों ने बड़ा तंग किया, लेकिन वो आखिरकार अपनी तबई मौत जो है वो रुखसत हो गया, इंतकाल कर गया। लेकिन अगर वो कत्ल किया जाए, इस लेवल तक बात चली जाए कि उसको दुख देकर जो है इस दुनिया से जो है उसको निकाला जाए, तो फिर वो अपनी जान जो है वो यकीनी तौर पर वफादार खालिक के सुपुर्द करने का हक रखता है। सो इस एतबार से ये कलमा जो है हमारे लिए इस अहमियत का हामिल है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो इस बात का भी सबूत दिया कि वो उन्होंने जो दुख पाया वो खुदा की मर्जी के मुआफिक पाया, और नेकी ही की, बदी नहीं की। कहीं भी जो है उन्होंने ऐसी बातें या ऐसी कोई भी जो है वो चीज़ नहीं की कि जिससे जो है उन्हें कहा जाता कि जिन्होंने कोई गुनाह किया। अगर हम इसी खत को, पहला पतरस को जो है वो पढ़े, उसके दूसरे बाब की 21वीं आयत को, और इसमें जो बात लिखी है, पहला पतरस चैप्टर 2 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 लिखा कि और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। और ये चीज हम जानते हैं कि खुदावंद ने जो है वो जो कुछ भी ये किया, ये इस हवाले से कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं, क्योंकि ये रूटीन के रेगुलर एक्शन की बात हो रही है। अगर टेंस के हिसाब से, जमाने के लिहाज से बात की जाए, तो जिस टेंस में पतरस रसूल इस बात को बयान कर रहे हैं वो रेगुलर एक्शन है कि रूटीन में ये काम होता रहा। यानी कि किस किस चीज का, ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खा कर गाली देता था, यानी रेगुलर एक्शन, और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। ये नहीं कि कोई एक दफा का ये वाकया है, ये रेगुलरली होता रहा, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। इट मीन्स कि ये चीज उसकी जिंदगी में, खुदावंद की जिंदगी में बहुत ज्यादा रूटीन में थी। हालांकि हम अनाजील में इन चीजों को बहुत कम देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने जो है ये कहा कि जी तुम्हारे सामने नविश्ता पूरा हुआ, यशायाह का सहीफा पढ़ के, तो उसके बाद लोग जो है उन्होंने कोशिश की कि उसको पहाड़ से नीचे गिरा दें। अब हमें सिर्फ ये सिनेरियो नजर आ रहे हैं, हम इस सिनेरियो को नहीं देख रहे कि लोग वहां पर गालियां भी निकाल रहे हैं, लोग वहां पर पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं खुदावंद को। उन चीजों को तो साथ नहीं लिखा गया वहां पे, लेकिन यकीनन जब हमारे लोग जो जहालत को फॉलो करने वाले हमारी एक भीड़ जो है, जो तकरीबन पूरी दुनिया में ही हमें नजर आती है, ये बस कोई इसमें कोई फर्क नहीं है कि किसी जगह पर ये नहीं होती, ये जब इस स्पिरिट को फॉलो करने वाले जो हैं, गुमराही की रूह को फॉलो करने वाले जब इकट्ठे होते हैं, तो उनसे इस किस्म की चीज़ों को एक्सपेक्ट करना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो गालियाँ भी निकालते हैं और धक्के भी देते हैं और मारते भी हैं और बेइज्जत भी करते हैं। ये उनका रूटीन का काम होता है। फिर इसके अंदर जो है वो उनकी जहालत जो है वो सामने आती है, और ये चीज़ जो है ये खुदावंद की ज़िंदगी में एक रूटीन मैटर था। लोग ऐसे करते थे, लेकिन वो किसी को धमकाते नहीं थे, वो किसी को आगे से गाली नहीं देते थे, वो दुख पाकर जो है किसी को कुछ नहीं कहते थे, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करते थे। और अगर आप इसको थोड़ा सा पिछली आयत से पढ़ लें, लिखा है
19वीं आयत जो है इसी चैप्टर की, चैप्टर 2 वर्स 19, लिखा कि क्योंकि अगर कोई खुदा के ख्याल से बेइंसाफी के बायस दुख उठाकर तकलीफों की बर्दाश्त करे तो ये पसंदीदा है, इसलिए कि अगर तुमने गुनाह करके मुक्के खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो, यानी ये भी रूटीन वही रेगुलर एक्शन है। हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते, यानी कि एक दफा, रूटीन की बात है, दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है, ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। यानी ये रूटीन की बात अगर है तो फिर ये खुदा के नजदीक जो है ये चीज पसंदीदा है। और अगर ये चीज जो है ये रूटीन मैटर नहीं है तो फिर कभी कभार हो जाए तो उस पर भी जो है बंदा परेशान हो जाए तो फिर उसकी क्या जो है उसकी सोच सकते हैं कि कितनी उसकी जो है वो उसके अंदर रूहानियत है और कितनी बर्दाश्त है। फिर इसको अगर मैं पहला पतरस के ही चैप्टर को थोड़ा सा आगे से पढ़ूं, जाके चैप्टर 3 से उसकी 13वीं आयत जो है उससे मैं पढ़ूं अगर, तो लिखा है कि अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है। मतलब पहले नंबर पर तो ये है कि अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है, ये सवाल है कि कौन है तुमसे बदी करने वाला, ठीक है। और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो, ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तद रहो, मगर हिलम और खौफ के साथ। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है मैं कहना चाहूँगा, हमारे आजकल के सो कॉल्ड कुछ लोग उठे हुए हैं, मुझे बड़ा अफसोस है उनकी ज़िंदगियों पर कि वो लोग समझते हैं कि हमारा गैर कौमों के साथ जाके जो बहस करना उसको वो अपोलोगिया यहाँ से निकालते हैं, इस वर्ष से निकालते हैं, ये अपोलोगिया, ठीक है, कि जो उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहना, इसको कहते हैं, ग्रीक में अपोलोगिया बोलते हैं, और अपोलोगिया से जो है वो अपोलोजेटिक्स बनता है और हम अपोलोजिस्ट हैं, हम जो है वो लोगों के साथ जाके बहस करते हैं। मतलब कहाँ की ये हिकमत है भाई, आपको किसने कहा है कि आप दूसरे मज़हब की किताबें पढ़ के तो उनके साथ बहस करें, आप उनको उनकी किताबों में से हवाले दें, ये कहाँ की हिकमत है, ये आपको खुदा ने हिकमत दी है। और शर्म नहीं आती कि आप लोगों के सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि खुदा ने हमें इस काम के लिए चुना है, हमें खुदा ने अपोलोजिस्ट बनाया है। कहाँ से खुदा ने अपोलोजिस्ट बनाया है इस किस्म के, मुझे बताया। खुदा ने मसीह ने तो ये हुक्म दिया है कि तमाम कौमों में जाकर इस इंजील की मुनादी करो, ठीक है। मतलब उन्होंने आपको कहा है कि नहीं, पहले जाओ उन कौमों में, पहले उनकी सारी डॉक्ट्रिन पढ़ो, फिर उनकी किताबों को ज़बानी याद करो, फिर उनकी किताबों में से उनको हवाले मेरे बारे में दे के बताओ। ये आपको जो खुशखबरी दी है खुदावंद ने खुद, क्या वो आपके नज़दीक कम पावरफुल है? कब आपकी जो है वो अकल खुलेगी इन चीज़ों को समझने के लिए कि आप लोगों के साथ जाके कभी हिंदुओं को आप चैलेंज कर रहे हैं, आए जी हमारे साथ मुनाजरा करें, कभी मुसलमानों को चैलेंज कर रहे हैं, कभी आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं। ये है यहाँ पर बात हो रही। इन आयात को जो लोग पेश बनाकर अपोलोजिस्ट बनते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी हमाकत का और बहुत बड़ी जहालत का और बहुत बड़ी गुमराही का शिकार लोग हैं। और हमें ऐसे लोगों से जो है वो किनारा करना चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना चाहिए कि हम इस किस्म के मामलात से जो है वो दूर रहें, और हमें जिस तरीका से खुदावंद ने हुक्म दिया है मुनादी करने का, हम उस तरीके से करें। ये चीज़ें सिर्फ मशहूरी गेन करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए, मुझे आप ये बताएं, स्टीफनस शहीद ने 7वें बाब में जो बयान किया है अमाल की किताब में, उसने उनको कौन से जनाब जो है वो दूसरे मज़हब के हवाले दिए हैं वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने जितनी बात भी की वहाँ पर वो सारी तौरात में से की, और तौरात की सारी स्टोरी को उन्होंने बयान किया कि शुरू से क्या हुआ, कैसे हुआ, बाप इब्राहिम से होते होते उन्होंने मूसा और सारी बातों को जो है वो ब्रीफ करके, 7वां चैप्टर कितना लंबा है, कितनी वर्सेस है उसकी, ठीक है। तो आखिर पे ये सारा कुछ बयान करने के बाद उनको जब शहीद किया गया तो वो शहीद कहलाते हैं। अब आज आप जाके गैर कौमों से बहस करते हैं, उनकी बातों को आप जो है वो उन लाला के सामने बयान करते हैं ऐसे तरीकों से। अब उसके बाद अगर वो आपको पकड़ते हैं, आपको मारते हैं, तो आप कहाँ से शहीद हैं? ये गुमराही नहीं तो और क्या है आपके अंदर कि आप इस चीज को शहादत समझते हैं? ये शहादत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है।
और आप खुदकुशी कर रहे हैं जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं। मेरा तो मसलन ऐसे लोगों के लिए यही जो है वो एक, मैं क्या कह सकता हूँ कि इस चीज़ के लिए एक उनको खुदा की तरफ से एक मैसेज ही दिया जा सकता है कि इस तरीके कार को बंद करें। ये कोई अक्लमंदी नहीं है कि आप अपोलोजिस्ट बन के लोगों को दिखाइए हम अपोलोजिस्ट बन गए। अपोलोजिस्ट कौन है? मैं कहता हूँ खुदा का कलाम यहाँ बता रहा है कि हर शख्स ही अपोलोजिस्ट बन जाएगा। कैसे बनता है हर शख्स अपोलोजिस्ट? खुदा के कलाम के मुताबिक पहले नंबर पे जो आयत हमने पढ़ी है कि अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है। बेस देख लें क्या है इसकी। आप नेकी कर रहे हैं, अब कोई आपसे बदी करता है तो वो है कौन? पहले तो ये क्वेश्चन है। और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। ठीक है, आप रास्तबाजी पर चल रहे हैं ना, आप रास्तबाज हैं और आपको फिर भी दुख मिल रहा है तो मुबारक है आप। ना उनके डराने से डरो ना घबराओ। इस चीज में आपको अगर कोई डराता है ना, कोई तो रास्तबाजी बंद कर दे अपनी तो हम तो गोली मार देंगे, ये कर देंगे, आपको मार दो भाई गोली, फिर आप शहीद हैं। ठीक है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे। अब इस हाल में अगर कोई आपसे आके पूछता है भाई अबे तू बता कि तू ये जनाब जो दुनिया जहान 2 नंबर तरीकों से जो वीजे लगवा रही है, ठीक है, जाली बैंक स्टेटमेंटें बना के 2 नंबर तरीके से रिश्वत दे के, तू क्यों नहीं करता ये काम? तू भी कर ले। तो आप उसे उसको जवाब जो आपने देना है ना, वहां पे आप अपोलोजिस्ट है कि भाई मुझे खुदावंद ने मना किया हुआ है, ये मेरे लिए नहीं है चीज, ये हमारे लिए चीज नहीं है। एक शख्स आपको ये कहता है वो सारी दुनिया ऐश कर रही, तू करके क्यों खा रहा है यार? तू भी थोड़ी बेईमानी कर ले। ठीक है, लोग भी तो कम तोलते हैं, तू कम तोल ले। तू इसमें ये मिलावट कर ले, तूने किराने की दुकान बनाई हुई है, तू इसके अंदर ये मिला के लोगों को बेच दे, तू मिर्चों में बुरा मिला के बेच दे, तू ये, मतलब आप कहते हैं भाई क्यों? वो कहते तू बेवकूफ है, तो क्यों नहीं करता ऐसे? आप उसे जवाब देने के लिए मुस्तदर हैं कि मैं क्यों नहीं करता, मैं क्यों नहीं करता भाई, मैं इसलिए नहीं करता, ये खुदा का हुक्म है, मैं इसलिए नहीं करता। उस चीज का आपके पास प्रॉपर जवाब होना चाहिए कि आपसे कोई जब तक आपकी उम्मीद की वजह ना पूछे आप अपोलोजिस्ट बनने की कोशिश ना करें। जब कोई आपसे आपकी उम्मीद की वजह पूछे, और उम्मीद हमारी क्या है, हमारी उम्मीद किस चीज के ऊपर है? हमारी उम्मीद खुदावंद के ऊपर है। जिंदा खुदा पर हमारी आंखें लगी हैं, हम इस इंतजार में हैं, इस उम्मीद में हैं कि हम इस खलासी जो बना हुआ है, जो जहान जो है, इससे हम खलासी पाएंगे। इस खराब जहान से हमें खलासी मिलेगी, निजात मिलेगी, हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हम हमेशा की जिंदगी पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। ठीक है, हम इन दुखों से तकलीफों से रिहाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम खुदावंद से माफी और मगफरत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम खुदावंद से उस जलाल की उम्मीद लगाए बैठे हैं जिसका सामना यहाँ की मुश्किलात नहीं कर सकती। इस जहान के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल का जो है वो सामना भी कर सके। हम इसलिए बैठे हैं उम्मीद पे, हमारी उम्मीद ये है। ठीक है जी, अब जब तक हमसे कोई उम्मीद नहीं पूछता, सियाने बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इंसान को। लिखा कि जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिलम और खौफ के साथ। उसमें भी आपने वैरायटियां नहीं लगानी, उसमें भी आपने जो है कोई ओवर एक्टिव या ओवर स्मार्ट नहीं बनना। उधरों का डखवाला, इधरों खा ऐ करो, हिलम और खौफ के साथ। फिर उसके बाद आगे क्या है, और नीयत भी नेक रखो ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हों जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं। क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी के सबब से दुख उठाओ तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। फाइनल जो उन्होंने दुख उठाया वो उन्होंने, हम जानते हैं कि सलीब पर उठाया, और वो एक ही दफा, बार बार मसलूब नहीं हो गए वो। ठीक है, बेइज्जती डेली करवाई होगी उन्होंने। इस चीज के जो है वो दुख और तकलीफ डेली उन्होंने सही होंगे जिस तरीके से पतरस रसूल ने बयान किया है। लेकिन जो फाइनल उन्होंने दुख उठाया उस चीज की हमारे लिए सबसे बड़ी जो खुशी इस चीज में है कि उनके उसके बाद खुदा ने उनको अपने दाने हाथ भी बैठाया है। तो जो दाने हाथ बैठे हैं वो हमें भी जो है वो किसी जगह पर पहुंचाएंगे, हमें भी उस जलाल में दाखिल करने की वो कुदरत रखते हैं। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। सब कुछ खुदावंद यहोशू मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन।